Warm greetings to my students. Today in this lecture, we are going to study a very beautiful poem written by William Shakespeare. The title of the poem is The Quality of Mercy. Before starting with the line by line explanation of this poem, let me tell you something about the great writer William Shakespeare. William Shakespeare was an English playwright, poet, and actor, widely regarded as one of the greatest writers in the English language and the world's preeminent dramatist. He was born in Stratford upon Avon and he married Anne Hathaway, with whom he had three children. Shakespeare's works include many plays, sonnets, long narrative poems, which have had a profound influence on English literature and arts. His most famous plays include Hamlet, Othello, King Lear, A Midsummer Night's Dream, Much Ado About Nothing, and histories like Henry V and Richard III. His innovative use of language and deep understanding of human nature have ensured his enduring popularity. Now, let me tell you about the poem which is prescribed in your syllabus, that is, The Quality of Mercy. The Quality of Mercy is a famous monologue from William Shakespeare's play The Merchant of Venice. It occurs in Act 4, Scene 1. This speech is delivered by Portia, who is disguised as a young male lawyer, Balthazar, during the trial scene of Merchant of Venice. In this scene, Portia appeals to Shylock, the Jewish moneylender, to show mercy towards Antonio, who has defaulted on a loan. In the play, Antonio has borrowed money from Shylock and, as a bond, agreed to give a pound of his own flesh if he cannot repay the loan. When Antonio defaults, Shylock demands the pound of flesh. Portia, disguised as a lawyer, makes an impassioned plea for mercy, emphasizing that mercy is a divine attribute that blesses both the giver and the receiver. अब मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये जो पोएम है द क्वालिटी ऑफ मर्सी, ये पोर्शिया की स्पीच है. मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में ट्रायल सीन में ये स्पीच हमें नज़र आती है. इस प्ले में एंटोनियो, शायलॉक, बसैनियो, पोर्शिया ये मेन कैरेक्टर्स हैं. एंटोनियो और बसैनियो अच्छे फ्रेंड्स हैं. एंटोनियो ने शायलॉक से कुछ पैसे उधार लिए हैं और अगर वो इस उधार को नहीं चुका पाता तो एक शर्त लगाई थी. इन्होंने एक पूरा एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग शायलॉक को एंटोनियो अपने ही मास का 1 पाउंड हिस्सा दे देगा अगर वो पूरा नहीं किया, उसने उधार नहीं दिया तो. इसका मतलब इनडायरेक्टली एंटोनियो मर जाएगा. और शायलॉक बहुत क्रूअल है, इसमें जूइश मनी लेंडर है जो क्रिश्चियन से नफरत करता है. तो अब एंटोनियो के जहाज डूब जाते हैं, वो उधार नहीं चुका पाता और इस टाइम शायलॉक कहता है कि उसको जो है 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए एंटोनियो की बॉडी से. तो वो कोर्ट में जाता है, अपील करता है कि मुझे जो है अपना एग्रीमेंट पूरा करना है. और कोर्ट में ट्रायल सीन में पोर्शिया, हमारी जो प्ले की हीरोइन है, वो आती है वकील के रूप में. वकील का नाम बेल्थाजार है और वो एक अपील करती है पूरे कोर्ट से, वेनिस के कोर्ट से, कि हम सबको दया दिखानी चाहिए. वो शायलॉक को एक अपील करके बोलती है कि शायलॉक आपको मर्सी दिखानी चाहिए एंटोनियो के ऊपर. एक दया बहुत सुंदर गुण है, डिवाइन क्वालिटी है और दया जो दिखाता है और जिसके ऊपर हम दया करते हैं, दोनों को ही आशीर्वाद मिलता है. मर्सी इज़ अ डबल ब्लेसिंग. तो शायलॉक जो है पोर्शिया की स्पीच को सुनता है, उसके बाद मानता भी नहीं है उसको. तो प्ले इस तरीके से आगे बढ़ता है. नाउ लेट अस रीड दिस ब्यूटिफुल पोएम. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. It is mightiest in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this sceptred sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then show likest gods when mercy seasons justice. Therefore, Jew,
Though justice be thy plea, consider this, that in the course of justice none of us should see salvation. We do pray for mercy, and that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy. I have spoke thus much to mitigate the justice of thy plea, which, if thou follow this strict court of Venice, must needs give sentence against the merchant there. Such a beautiful poem it is. Let's take up the starting lines. The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. इनका मतलब है कि मर्सी जो क्वालिटी है, दया का जो गुण है, वो कभी फोर्सिबली नहीं आ सकता, ज़बरदस्ती नहीं दया को हम पनपा सकते अपने दिल में. वो एक नेचुरल है, बिल्कुल अपने आप आता है. वो एक जेंटल रेन की तरह से हेवन से आता है. जैसे बरसात नेचुरली आती है, वैसे ही दया का जो गुण है वो नेचुरली ही हमारे दिल में आता है. इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड. ये डबल ब्लेसिंग है. मर्सी जो है वो ब्लेस करती है जो आदमी दया दिखाता है और जिस पर दया दिखाई जाती है. मर्सी ब्लेसेस बोथ द पर्सन हु गिव्स इट एंड द पर्सन हु रिसीव्स इट. डबल ब्लेसिंग है, दोनों के ऊपर अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है दया का. जो दिखा रहा है दया, उसको फील गुड होता है कि यस मैं कितना दयालु हूँ, एक पॉजिटिविटी उस आदमी के अंदर आती है. और जिसके ऊपर दया दिखाई जा रही है, डेफिनेटली उसको अच्छा लगता है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई केयर टेकर है, मेरा कोई ख्याल रख रहा है. तो मर्सी इज़ अ डबल ब्लेसिंग. इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स. यहाँ तक हमने कर लिया. इट इज़ माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट. इसका मतलब बहुत पावरफुल है मर्सी. मर्सी इज़ द मोस्ट पावरफुल व्हेन शोन बाय दोज हु होल्ड पावर. ये बहुत एक पावरफुल क्वालिटी है. इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन. थ्रोन मोनार्क होता है जो राजा एक शासन कर रहा होता है, जो एक सिंहासन पर बैठा होता है. तो एक राजा है, अगर उसके अंदर दया का गुण है तो वो और ज़्यादा अच्छा राजा साबित होगा. द किंग्स मर्सी is a greater attribute than his crown or his royal status. राजा को अगर हम ज़्यादा एक अच्छा राजा मानेंगे, कब मानेंगे? जब उसके अंदर क्वालिटी ऑफ मर्सी होगी, दया का गुण होगा. His scepter shows the force of temporal power. scepter होता है स्टाफ, जो छड़ी होती है राजा के हाथ में होती है. सेप्टर का मतलब होता है कि राजा की जो छड़ी है वो एक सिंबॉलिक है उसकी पावर का, उसकी मेजेस्टी का, जिससे लोगों में एक डर पैदा होता है, रिस्पेक्ट पैदा होती है राजा के लिए. जो राजा का सेप्टर है ये दिखाता है कि राजा का बहुत बलशाली है और धरती पे उसकी बहुत पावर है. टेम्पोरल मीन्स अर्थली. द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी. एट्रीब्यूट का मतलब मार्क, साइन, सिंबल. ऑ का मतलब डर, मैजेस्टी का मतलब पावर, ग्लोरी, डिग्निटी. जो ये सेप्टर है, जो ये छड़ी है, जो ये स्टाफ है, ये राजा का एक दिखाता है कि राजा के अंदर बहुत पावर है, वो लोगों को डरा सकता है, उसकी बहुत डिग्निटी है. तो ये सारी चीज़ें राजा के एक इनडायरेक्टली दिखा रही हैं कि किंग इज़ वेरी पावरफुल. बट मर्सी इज़ अबव दिस सेप्टर्ड स्वे. नाउ द राइटर इज सेइंग कि राजा की जो ये छड़ी की पावर है, कंट्रोल है, जो अथॉरिटी है राजा की, जो दया का गुण है, मर्सी है, ये इस पूरी राजा की अथॉरिटी से कहीं ऊपर है. तो मर्सी राजा के कानून से, राजा के जो पूरा ज्यूरिडिक्शन है उससे ऊपर है. इट इज़ एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स. एंथ्रोन्ड का मतलब पूरा एक जो क्राउंड होती है, जो रखी जाती है, रिजाइड करना, रहना. जो मर्सी है, इट लिव्स इन द हार्ट्स ऑफ रूलर्स. इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. और ये भगवान का ही एक गुण है, भगवान की ही एक डिवाइन जो क्वालिटी है, ये एसोसिएटेड है भगवान से. जो दया का गुण है वो एक डिवाइन एट्रीब्यूट है, रॉयल एट्रीब्यूट है, विच इज़ एसोसिएटेड विद गॉड. एंड अर्थली पावर डथ दैन शो लाइकेस्ट गॉड्स. और धरती का जो पावर है, जो कानून है, वो कब भगवान जैसा बन जाएगा? वैन मर्सी सीजन्स जस्टिस. जब हम जस्टिस के अंदर
मर्सी को मिला देंगे। अगर हम कानून में दया का गुण मिला दें, कानून में भी हम दया दृष्टि दिखाएं, तो यहाँ का जो धरती का कानून है वो बिल्कुल भगवान जैसा बन जाएगा। अर्थली पावर इज मोस्ट गॉड लाइक व्हेन इट इज टेम्पर्ड विद मर्सी, व्हेन इट इज एडेड टू मर्सी। देयरफॉर ज्यू दो जस्टिस बी दाई प्ली, दाई का मतलब योर, ज्यू का मतलब यहाँ है शाइलॉक। पोर्शिया सीधा शाइलॉक को एड्रेस कर रही है कि शाइलॉक, तुम्हारा जो प्ली है, तुम्हारी जो अपील है, जो तुम प्रार्थना कर रहे हो कोर्ट से कि मुझे जस्टिस चाहिए, कंसिडर दिस, उसको कंसिडर कर लो, दैट इन द कोर्स ऑफ जस्टिस नन ऑफ अस शुड सी सैल्वेशन। लेकिन पोर्शिया समझाती है कि अगर हम इतना ज़्यादा सख्ती से जस्टिस मांगेंगे तो हम किसी को भी सैल्वेशन नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम्हें दया दिखानी चाहिए। अगर तुम एंटोनियो को मार दोगे, उसका 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले लोगे, वो मर जाएगा, तो ना तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ना हम किसी को भी नहीं मिलेगा। तो वो अपील करती है ज्यू से, शाइलॉक से, कि तुम जो है मर्सी दिखाओ, दया दिखाओ। वी डू प्रे फॉर मर्सी, हम सब एक प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं मर्सी के लिए, दया के लिए। एंड दैट सेम प्रेयर डथ टीच अस ऑल टू रेंडर, रेंडर होता है डिलीवर करना, देना, दैट डीड्स ऑफ मर्सी, डीड्स का मतलब एक्ट, एक्शन, कर्म करना। तो इसीलिए पोर्शिया कहती है कि मैं, डथ का मतलब यहाँ है डज, कि मैं एक प्रेयर करती हूँ कि हम सभी को दया के जो एक्ट्स हैं वो दिखाने चाहिए, दया अपनानी चाहिए। वी ऑल शुड एक्ट मर्सीफुली। नाउ द लास्ट लाइन्स, आई हैव स्पोक दस मच टू मिटिगेट द जस्टिस ऑफ दाई प्ली। मिटिगेट होता है सॉफ्टन करना, ईज करना। दाई मीन्स योर, प्ली मीन्स प्रेयर या एप्लीकेशन। नाउ पोर्शिया सेज, शाइलॉक को कहती है ये कि मैंने बहुत सारा बोला है ताकि जो तुम्हारी जस्टिस की एप्लीकेशन है, जो तुम प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे पूरा जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, उसको थोड़ा सा मैं सॉफ्टन कर सकूं। लेकिन अगर तुम अपनी ही बात पे अड़े रहते हो, विच इफ दाउ फॉलो, अगर तुम फॉलो करते हो कि नहीं मुझे तो जस्टिस ही चाहिए, मैं नहीं मानूंगा, दिस स्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वेनिस, जो वेनिस का स्ट्रिक्ट कोर्ट है, सख्त कानून है, मस्ट नीड्स गिव सेंटेंस अगेंस्ट द मर्चेंट देयर। तो लास्ट में जो है जजमेंट आ जाएगा, सेंटेंस आ जाएगा मर्चेंट के खिलाफ जो यहाँ बैठा हुआ है एंटोनियो। तो लास्ट में पोर्शिया कहती है कि अगर तुमने दया नहीं दिखाई तो डेफिनेटली एंटोनियो के खिलाफ जजमेंट होगा और एंटोनियो मारा जाएगा। सो दिस पोएम इज अ पावरफुल स्पीच गिवन बाय पोर्शिया, एंड पोर्शिया आर्ग्यूज दैट mercy is a divine and noble quality, more powerful and praiseworthy than any earthly authority or symbol of power. She emphasizes that true justice must be tempered with mercy, as everyone relies on mercy for their own salvation. This plea is a moral argument aimed at Shylock, urging him to show compassion instead of insisting on strict justice. So this was all about this famous poem, The Quality of Mercy. Hope you have understood it well. इस पोएम के बेस जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी. Stay tuned with the channel. Thank you and have a nice day.